Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be safe and sound at home and will attend your classes regularly by the grace of Almighty Allah. Dear student, today we will discuss the rest of the exercise. Hope is a thing with feathers. Hope is a thing with feathers. So open your textbook on page 78. Choose the correct option. The poet's comparison of hope to a bird is made in the form. इस पोइम में पोइट ने जो होप का परिंदे के साथ मुवाजना किया है उसने कौन सी डिवाइस जो है उसने इस्तेमाल की है? पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, इलस्ट्रेशन, मेटाफर। तो उसने मेटाफर का इस्तेमाल किया है। Option D is the correct answer. The poet uses the word gale and storm as metaphor. What do these words represent? The poet uses the words gale and storm as metaphor. शायर ने गेल और स्टॉर्म जो अल्फाज है इनको एज अ मेटाफर इसने इस्तेमाल किया है। What do these words represent? इन वर्ड्स के तो अपने माने भी है लेकिन यहाँ पर ये इसके माने जो है वो क्या निकलते हैं? Times of bad weather, hard or painful times, pleasant time, time of success and growth. B number option is the correct one. Hard or painful times. Hope is helpful in times of pain, sorrows and difficulty. Which of the following lines from the poem best support this statement? यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट मौजूद है, hope is helpful in times of pain, sorrow and difficulty. It is a statement. तो ये स्टेटमेंट कौन से लाइन को जो है उसको सपोर्ट करती है पोइम में? Hope is a thing with feather that perches in the soul and sing the tune without the words and never stop at all. And sweet is in the gale is heard, and sore must be the storm. So C number option is the correct one. C number option is correct. The poet says that and sing the tune without the word. Why the bird of hope sing in a tune that has no word? इसका मतलब क्या है? And sings the tune without the words, यानी वो जो कुछ वो गाता है उसमें अल्फाज नहीं होते, सिर्फ धुन होती है। To emphasize that hope does not need to be put into words to be felt. To point out that it is very difficult for people to express whether they feel hopeful or not. To suggest that people are unable to understand the feeling of hope. To indicate that people who are always hopeful are also often forgetful. A number option is correct. To emphasize that hope does not need to be put into words to be felt. Read the following lines of the poem. And sure must be the storm that could abash the little bird that keeps so many warm. What does the word abash mean in the above line? अबैस जो है उसका यहाँ पर माना क्या है? यहाँ पर to confuse, to support, to praise, to silence that keep so many warm. तो यहाँ पर इसका माना क्या होगा? To confuse, to confuse. Connotation and denotation. The next topic is connotation and denotation. What is connotation and what is denotation? We says connotative meaning and denotative meanings. To expand our vocabulary, we must know about connotative and denotative meaning of words.
Connotation and denotation are two principal methods of describing the meaning of words. When you read something and you want to describe the meaning of the word, so you have to use two principal methods. अल्फाजों के माने निकालने के लिए दो तरीक़े इस्तेमाल होते हैं, कनोटेटिव मीनिंग एंड कनोटेशन एंड डिनोटेशन। ये दोनों क्या है? प्रिंसिपल मेथड्स है टू डिस्क्राइब द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। Connotative meaning or connotation refer to the emotions or human reaction and feelings that come from a word. Connotation meanings could be a positive and negative association. Refer to the emotion or human reaction and feeling that come from a word. जब कोई राइटर जो है वो अल्फाजों को इस तरह इस्तेमाल करता है कि उस पोएम को, उस स्टोरी को, उस नावल को पढ़ने के बाद अल्फाज के माने जो है उस कॉन्टेक्स्ट से उसके साथ वो रिलेट होती है और वहाँ से न माने जो है वो ख़ुद ब खुद उस शायर के पोएम को, कहानी को वो बयान करते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? कनोटेटिव मीनिंग। कनोटेशन मीनिंग कुड बी अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एसोसिएशन। नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। और व्हाट इज़, हम कनोटेशन को हम उर्दू में हम इस्तिलाही मानी भी कहते हैं, यानी इसका ताल्लुक़ जो है वो उस मुसन्निफ़ से है कि मुसन्निफ़ इन अल्फाज को किस तरह इस्तेमाल करता है ताकि कॉन्टेक्स्ट से इसके माने जो है वो पढ़ने वाले को जो है वो वाज़ी हो। सारे कॉन्टेक्स्ट को पढ़ कर इन अल्फाज के माने जो है वो हमारे समझ में ख़ुद ब खुद जो आ जाते हैं। डिनोटेशन इज़ अ precise literal meanings definition of word that might be found in a dictionary. डिनोटेशन को हम क्या कहते हैं? डिनोटेटिव मीनिंग्स, precise literal definition of words। अल्फाज के जो डिक्शनरी में जो माने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डिनोटेशन कहते हैं और डिनोटेटिव मीनिंग्स, यानी अल्फाज के जो माने हम देखते हैं डिक्शनरी में तो उसको प्रिसाइज, मुकम्मल, और उसके जो लग़वी माने होते हैं डिक्शनरी में उसको हम डिनोटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ यू लुक अप द वर्ड स्नेक इन अ डिक्शनरी, its denotative meaning is any of numerous scaly, legless, sometimes venomous reptile having a long, tapering, cylindrical body and found in most tropical and temperate region। जब हम डिक्शनरी खोलेंगे और इंग्लिश वर्ड स्नेक के स्नेक का माना क्या है, तो डिक्शनरी में इसके जो डिनोटेटिव मीनिंग है वे होंगे कि क्या है? ये एक ऐसा जानवर है जिसके पाँव नहीं होते और जिसको हम रेप्टाइल ग्रुप में जो है, जो रेप्टाइल जो एनिमल्स का ग्रुप है उसमें हम इसको रखते हैं, और ये ज़्यादातर पर ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। यानी जो स्नेक, सांप, जो स्नेक के मीनिंग है उसको हम क्या कहते हैं? ये एक जानवर है जो आमतौर पर हम अपने आँखों से देखते तो उसको स्नेक कहते हैं। डिक्शनरी में इसका माना ये होगा, यानी आमतौर पर उर्दू में कहेंगे सांप। तो सांप क्या है? तो ये वो जानवर है, वो जहरीला जानवर जो पेट के बिल जो है वो चलता है, और ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में जो है ये पाया जाता है। तो इसे क्या हुए सांप के? ये इसके डिनोटेटिव मीनिंग हो गए। द कनोटेशन फॉर द वर्ड स्नेक कुड इंक्लूड ईवल और डेंजर। और इसके जो इस्तिलाही माने हैं, अगर कोई मुसन्निफ़ इसको अपनी शायरी में, अपनी कहानी में इस्तेमाल करता है तो उसके साथ उसके जज्बात और फीलिंग और एहसासात जो है मुंसलिक होते हैं,
और वहाँ पर इसके इस्तिलाही डिनोटेटिव कनोटेटिव मीनिंग जो है वो क्या निकलेंगे, ईवल और डेंजर, ईवल और डेंजर। वहाँ पर इसके कनोटेटिव मीनिंग क्या होंगे, ईवल और डेंजर। हम कहते हैं ना कि ये बंदा जो है ये आस्तीन का सांप है, तो आस्तीन का सांप जो है यहाँ पर इसके मीनिंग जो है वो कनोटेटिव है। और हम कहेंगे कि ओके, मूव फर्दर, राइट द कनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। इस पोएम में हमने ये अल्फाज पढ़े हैं, तो यहाँ पर इसके इट वाज अ मेटाफर, द पोएम वाज रिटन इन द फॉर्म ऑफ मेटाफर। तो यहाँ पर हम इसके माने जो है वो क्या लेंगे, वो हम डिनोटेटिव माने भी इसके निकालेंगे और कनोटेटिव भी। वार्म, डिक्शनरी में अगर हम वार्म को देखें तो इसका मतलब क्या है, गरमाइश, इसको हम कहते हैं हॉटनेस। जिस चीज़ की टेम्परेचर ज़्यादा होती है तो ये इसके क्या है, वो है डिनोटेटिव मीनिंग। इसके जो कनोटेटिव मीनिंग्स है वो क्या है, एक्टिव एंड होपफुल। जो बंदा एक्टिव होता है उसको हम क्या कहते हैं, वार्म, वार्म अप द स्टूडेंट्स, यानी क्लास शुरू होने से पहले स्टूडेंट को वार्म अप किया जाता है। गैल, गैल डिनोटेटिव मीनिंग इज स्टॉर्म, तूफ़ान को कहते हैं, सख्त तूफ़ान को कहते हैं। और इसके जो कनोटेटिव मीनिंग्स है पोएम में वो है डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस, डिफ़िकल्ट कंडीशन, सीवियर कंडीशन। सी डिनोटेटिव मीनिंग इज अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, एक जगह पर बहुत ज़्यादा पानी होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं। जबकि इसके कनोटेटिव मीनिंग जो है पोएम में वो क्या, लार्ज नंबर, लार्ज नंबर। एंड द स्ट्रेंजेस्ट सी, एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी डिनोटेटिव मीनिंग इज द लास्ट पॉइंट, एट द एंड। और इसके जो कनोटेटिव मीनिंग है यहाँ पर पोएम में वो क्या है, डिफिकल्ट सिचुएशन। चेलिस्ट, चेलिस्ट डिनोटेटिव मीनिंग इज अनप्लीजेंट कोल्ड, बहुत ज़्यादा सर्दी को क्या कहते हैं, चेलिस्ट, जो बर्दाश्त से बाहर हो। और यहाँ पर इसके जो कनोटेटिव मीनिंग है वो क्या है, अनप्लीजेंट सिचुएशन, वो सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा नाखुशगवार हो। तो दीज वर डिनोटेटिव एंड कनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। Specify whether the following lines from the poem you have read earlier represent personification, simile, metaphor or imagery। यहाँ पर सेंटेंस लाइन्स दिए गए हैं। लाइन्स मीन, इट्स मीन दैट दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम डिफरेंट पोइम्स। यहाँ पर सेंटेंस नहीं लिखा है इन्होंने, इन्होंने लाइन्स लिखे हैं। तो लाइन्स कहाँ पर होते हैं, पोइम्स में। represent personification, simile, metaphor और imagery। आप देखिए कि ये किस लिटरेरी डिवाइसेस को ये रिप्रेजेंट करते हैं। personification को हमने personification के बारे में पढ़ा था, to give quality of living human beings to a non-living object, यानी जो इंसानी खूबियाँ है वो हम किसी दूसरी चीज़ को देते हैं तो वो उसको हम क्या कहते हैं, personification। Simile, a comparison, when we make comparison by using word as and like between two different things। दो चीज़ों जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है और उनके हम दरमियान हम मुआजिना करते हैं, उसके लिए हम as और like का इस्तेमाल करते हैं, उसको simile कहते हैं। एंड मेटाफर एज अ डायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स, जहाँ पर होप और बर्ड्स के दरमियान जो कंपेरिजन था। एंड इमेजरी, जिसके बारे में हमने कल ही पढ़ा था, इमेजरी टू क्रिएट अ मेंटल पिक्चर बाय यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट आर फील टू आवर सेंसेस। तस्वीर जो है उसकी हमारे जहन में बनती है, उसको हम महसूस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। इस तरह की तस्वीर जो है वो हमारे जहन में बनती है।
तो इमेजरी जो है, हमने इमेजरी के बारे में पढ़ा था कि व्हेन वी इमेजरी के लिए जो है पर्सनिफिकेशन, सिमिल और मेटाफर का इस्तेमाल भी होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि कौन से लाइन में मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है, सिमिली है और इमेजरी है। आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। अगर आप देखें, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, द पोइट कंपेयर हिमसेल्फ विद क्लाउड बाय यूजिंग अ वर्ड एज, सो इट इज कॉल्ड सिमिली। He stirred his velvet head. He stirred his velvet head. So it is a metaphor because he compared his head with velvet. Even if they are a crowd of sorrow. Even if they are a crowd of sorrow. It is personification. Crowd जो है वो क्या है? वो crowd of sorrow है. I faked a small smile and then shifted away. I faked a small smile and then shifted away. Create imagery in our mind, visual imagery, which is a bliss of solitude. Which is a bliss of solitude. So it is a bliss of solitude. तो ये क्या है यहाँ पर? तन्हाई की जो है वो क्या है? वो नेमत है. Bliss of solitude, personification. They look like frightened beads, I thought. They look like a frightened beads. It is a simile. Like word is used here, so it is a simile. यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर सेंटेंसेस थे. वो क्या है? A host of golden daffodils. A host of golden daffodils. At the same time, it is an personification and imagery. So personification is used here to create visual imagery. This being human is a guest house. This being human as a guest house, personification, or we can say this being human is a guest house. यानी ये बंदा क्या, ये खुद क्या है? गेस्ट हाउस है. यानी he show the hospitality of a person, so he is compared with a guest house. Human is compared with a guest house, so it is a direct comparison, so we call it metaphor. The weed before me was dying or dead. The weed before me was dying or dead. Weed here, the quality of dying and dead have been given to weed, so it is a personification. 10,000 saw I at a glance, so it is imagery and a visual imagery. Move to the next question. The weed before me was a dying or dead. Okay, which word phrase in the poem mean the same? यहाँ पर phrases दिए गए हैं, words दिए गए हैं. Rake to hardship, जब कोई बंदा जो है वो hardship तकालीफ से मुकाबला करता है, तो उसके लिए कौन सा लाइन जो था वो इस्तेमाल हुआ था poem में, या कौन सा phrase जो था वो इस्तेमाल हुआ था poem में. तो hardship के लिए यहाँ पर इसके लिए जो इस्तेमाल हुआ था वो क्या था? वो था and sweetest in the gale is heart, hope never stop. इसके लिए क्या इस्तेमाल हुआ था? hope never stop and never stop at all. found everywhere, found everywhere. इसके लिए I have heard it in the chilliest lane and on the strangest sea. Lives in the soul, perches in the soul. Effect of hardship that could abate, that could abase the little birds. So dear student, it was our lecture today about the exercise hope is a thing with feather. I hope you enjoyed the lesson. Thank you very much.